we are here again after 5 long days, and we are going to discuss a very interesting topic, molecular basis of inheritance, right? Yes. So molecular basis of inheritance, up to now, what all things we have discussed? Packaging of DNA, right? In prokaryote as well as in eukaryote. And after that, double helix structure of DNA, then RNA as the genetic material, RNA world, then central dogma. We have started with central dogma. How DNA makes DNA, that is replication. So how does that take place, right? So the entire process we learned. And after that, we learned how DNA gives RNA, and that process is called as transcription, right? And then after transcription, we saw transcription in prokaryote and eukaryote. In eukaryote, we saw something very interesting, right? In eukaryote, first you were not getting mRNA. What were you getting instead? Instead of mRNA, what were you getting first? You had to do some processing, right? You had to do some processing. Yes, Vanashri, awesome. So first you get hnRNA, and that hnRNA is converted to mRNA by 3 processes. What are they? What are they? What are these 3 processes? Splicing, yes. Capping and tailing. Splicing, you remove the intron. Capping and tailing, you add molecules at 5' and at 3', right? Adenylate at the 3' and 5-methyl guanosine at the 5th', right? Yes. This is lecture number 8 on this topic, molecular basis of inheritance. Cool. So I hope you all have revised it at your home. Yes. So we are going to start with genetic code, right? Basics of genetic code we had seen before, right? So today we will see what all characteristics of genetic code are there. Cool. But before we do that, I want you to solve something. Are you all ready for it? Are you all ready for it? Click on yes. Yes? Okay. So here is the question for you. Last class we were learning about genetic code, right? That let's say mRNA has come in the cytoplasm. We know this mRNA gives protein, but the question was, what actually mRNA has? The answer to this was, it has information. What actually this information is? The answer to that is, it is consisting of nitrogenous base. Now, how are they arranged is the third question. So it is arranged in triplet. It is arranged in triplet. I hope you understand the meaning of it. Triplet मतलब कोडॉन. एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजनस बेस. एक कोडॉन में कितने नाइट्रोजनस बेस? 3. हमने ये प्रूव भी किया था. क्यों? जैसे कि आपके 4 बेसेस है ना, एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, गुआनिन. क्योंकि ये mRNA है तो हम थाइमिन नहीं लिखेंगे, हम यूरासिल लिखेंगे, राइट? तो अगर एक का कोड बनाओगे तो 4 का पावर 1, 4 ही अमाइनो एसिड बनते. आपके अमाइनो एसिड होते कितने हैं? 20 अमाइनो एसिड. ठीक है भाई, मैं 2 का सेट लूंगी तो 4 4 या 16. अभी भी हम 16 बना पाए, 4 अभी भी बच गए. चलो हम 3 का सेट लेंगे तो 64 बन जाएंगे. कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 64. तो काम तो बन गया अपना. हम इस 64 से 20 तो इजीली बना सकते हैं ना, है कि नहीं? इसी की वजह से क्या होगा?
कि बहुत सारे कोडॉन होंगे जो सेम अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, राइट? तो दैट वाज द समरी दैट 20 अमाइनो एसिड बनाते हैं प्रोटीन आपकी बॉडी में। एक एक कोडॉन जिसमें इंफॉर्मेशन है, एक कोडॉन में एक अमाइनो एसिड का इंफॉर्मेशन है। वो कैसा है? ट्रिपलेट है, 3 नाइट्रोजनस बेसिस। टोटल कितने कोडॉन? जल्दी बोलो, टोटल कितने कोडॉन? 64 कोडॉन। उस 64 में 3 कोडॉन स्टॉप कोडॉन, मतलब वहां पे ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप कोडॉन मतलब कोई अमाइनो एसिड नहीं आएंगे उसके लिए। स्टॉप कोडॉन का मतलब टीआरएनए उनके लिए अमाइनो एसिड लेके नहीं आएगा, राइट? कितने स्टॉप कोडॉन? 3। डिड यू चेक दिस इन योर बुक? इफ यू हैव नॉट चेक्ड, आई हैव चेक्ड। आपने भी चेक करा ना, उस दिन मुझे बहुत लोग दिखा रहे थे। आपके बुक में करेक्ट इंफॉर्मेशन है। आपका जो महाराष्ट्र बुक है ना, उसमें भी इंफॉर्मेशन करेक्ट दिया हुआ है। आप फॉलो कर सकते हो अपने बुक को, ठीक है? गलत इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने जो स्लाइड दिखाया है ना, उस स्लाइड में इंफॉर्मेशन गलत है, ठीक है? तो UAA, UAG, UGA, इसके लिए कोई अमाइनो एसिड नहीं, इसके लिए कोई टीआरएनए नहीं, ठीक है? फिर हमने ये सीखा था कि अगर आपको मैं बोलूं कि पूरा चार्ट बना के दिखाओ, तो आप बना लोगे ना? 4 4 लिख लोगे इधर, 4 4 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। डिफरेंस बस यही है, यहाँ पे अलग अलग लिखोगे UCAG, यहाँ पे साथ में लिखोगे UCAG, UCAG, है ना? ये आपका फर्स्ट लेटर है, ये सेकेंड लेटर है, तीसरा ये है। फिर से उसको उठाओ, फिर से इसको उठाओ, फिर से इसको उठाओ, ऐसे ऐसे करके हम सारा इंफॉर्मेशन लिखते जाते हैं, राइट? आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला था। क्या क्या याद करने की जरूरत है? बस ये याद करो कि इनिशिएटर कोडॉन कौन है, मैंने बोला था ना। बस ये याद कर लो कि ट्रांसलेशन स्टार्ट कहां से होगा? इनिशिएटर से। कौन सा कोडॉन इनिशिएटर कोडॉन है? AUG। कौन से अमाइनो एसिड को लाएगा? इनिशिएटर। कौन से अमाइनो एसिड को लाएगा? इनिशिएटर। सॉरी, कौन से अमाइनो एसिड को लाएगा? मिथियोनिन। कौन से अमाइनो एसिड को लाएगा? मिथियोनिन। बोलते क्या हो इसको? इनिशिएटर कोडॉन। क्यों? क्योंकि इससे आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, राइट? बस यही सीखना था। 3 स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन UAA, UAG, UGA। अब कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे कि स्टॉप कोडॉन किसी अमाइनो एसिड को कोड क्यों नहीं करते हैं? अगर सबके सब अमाइनो एसिड को कोड करते रहेंगे तो कभी आपके बॉडी में ट्रांसलेशन खत्म होगा? आपको ट्रांसलेशन को रोकना भी तो है, तभी तो आपको प्रोटीन मिलेगा, है कि नहीं? इसीलिए जब स्टॉप कोडॉन आता है तो टीआरएनए नहीं आएगा, टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेके नहीं आएगा, तो प्रोसेस आपका जो है ट्रांसलेशन का वो खत्म हो जाएगा और आपको एक प्रोटीन का चेन मिल जाएगा। आपको प्रोसेस को खत्म करना पड़ेगा, तभी तो आपको प्रोटीन चेन बाहर निकलेगा। अदरवाइज बस प्रोसेस चलता जाएगा, आप उस प्रोटीन को यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे बॉडी में स्टॉप कोडॉन्स है, ठीक है दीक्षा? गॉट इट ना? यस, ओके। इनिशिएटर कोडॉन AUG है, तो देखो इनिशिएटर कोडॉन, जितने भी कोडॉन हैं एक्सेप्ट स्टॉप कोडॉन, सबके लिए एक टीआरएनए होगा ना? वही तो ट्रांसफर आरएनए है, वही तो ब्रिंग करेगा कौन सा अमाइनो एसिड को लाना है। तो इनिशिएटर कोडॉन
के लिए भी एक टीआरएनए होगा, तो वो भी इनिशिएट करेगा ट्रांसलेशन को। तो क्या मैं बोल सकती हूँ उस टीआरएनए को जो प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, दैट इट इज इनिशिएटर टीआरएनए? यस और नो, सोच के बोलो। अगर मैं एयूजी को इनिशिएटर कोडॉन बोल रही हूं, तो जो टीआरएनए आएगा किसको लेके? मिथियोनिन को लेके। जो टीआरएनए कौन से अमाइनो एसिड को लेके आएगा? मिथियोनिन को लेके आएगा। क्या मैं उस टीआरएनए को इनिशिएटर टीआरएनए बोल सकती हूँ? सोच के बताओ। अगर हाँ तो क्लिक ऑन यस, नहीं तो क्लिक ऑन नो। बोल सकते हैं ना, इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, राइट? तो इसके लिए जो टीआरएनए आएगा, उस टीआरएनए में कौन सा अमाइनो एसिड होगा? मिथियोनिन। इस टीआरएनए को क्या बोलोगे? इनिशिएटर टीआरएनए। ठीक है, समझ आया? अब कुछ हम फीचर्स देखेंगे जेनेटिक कोड के। आपको सब समझ आ जाएगा क्योंकि आपको सब पता है, बट अगर एग्जाम में आता है तो आपको लिखने की हैबिट होनी चाहिए ना। तो कुछ फीचर्स होते हैं जेनेटिक कोड के, देखो क्या है। अगर समझ ना आए तो मुझे बोलना। पहला पॉइंट पढ़ो, ठीक है? पहला पॉइंट, कोडोन कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं, सबको पता है। कितने कोडॉन अमाइनो एसिड के लिए है? 61 कोडॉन अमाइनो एसिड के लिए है। क्यों? क्योंकि 3 कोडॉन कोई अमाइनो एसिड नहीं बनाता, तो 3 कोडॉन डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडॉन्स बोलते हैं। कुछ नया सीखा? नहीं ना, राइट? तो ये एक फीचर है, आपको पता है पहले से, राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। 1 कोडॉन कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड। एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, इसको ध्यान से समझना। अगर मैंने AUG लिया या फिर कुछ भी लिया, मान लो AUG लिया, एक कोडॉन है, ये किस अमाइनो एसिड को कोड करता है? मिथियोनिन को। क्या कभी देखा है कि AUG किसी और अमाइनो एसिड को भी कोड कर रहा है? नहीं ना। तो एक कोडॉन कितने अमाइनो एसिड को कोड करता है? एक अमाइनो एसिड को। समझ रहे हो? अगर वो कोडॉन आपकी बॉडी में है, मेरी बॉडी में है, किसी और की बॉडी में है, सबकी बॉडी में वो कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड बनाएगा। क्या समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? कोडॉन स्पेसिफिक होते हैं, कोडॉन स्पेसिफिक होते हैं। मैं AUG हूं तो मैं मिथियोनिन ही बनाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं मिथियोनिन ही बनाऊंगा। समझ रहे हो? एक कोडॉन स्पेसिफिक होता है एक अमाइनो एसिड के लिए। एक कोडॉन से आप बहुत सारे अमाइनो एसिड नहीं बना सकते। समझ रहे हो? तो कोडॉन क्या है? स्पेसिफिक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें। ठीक है? कोडॉन कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड, इट इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। अनएम्बिगुअस का मतलब क्लैरिटी है, ठीक है? एम्बिगुअस का मतलब बहुत उलझा है सब कुछ, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसको बोलते हैं कि एम्बिगुअस है। सब कुछ क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस तो क्लियर है। एक कोडॉन से एक अमाइनो एसिड पूरा क्लियर है, एक कोडॉन से एक अमाइनो एसिड बिल्कुल स्पेसिफिक है, राइट? यस। तो ये दूसरा पॉइंट। अब तीसरा देखो, हमने बोला एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। अब ये देखो तो ऐसा हो सकता है ना कि बहुत, ये वाला टेबल देख लो, बहुत सारे कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करें। इज इट हैपनिंग और नॉट? सी, UCU सीरीन को करेगा, एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड। UCC इसका भी अमाइनो एसिड सीरीन है,
UCA का भी सीरीन है, UCG का भी सीरीन है। तो हर कोडॉन के लिए एक अमाइनो एसिड, लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि चारों के चारों कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं। को समझ आ रहे हैं? एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ठीक है। सिंस हमारे पास बहुत सारे कोडॉन हैं, तो मल्टीपल कोडॉन हो सकता है कि वो एक अमाइनो एसिड को कोड करें। हाँ, यस वनश्री, मल्टीपल कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, लेकिन एक कोडॉन मल्टीपल अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। समझ गए ना? मान लो 1, या फिर इसको दूसरे पेज में अगर लिख दूं, यहाँ पे जहां पे लिख रहे थे हम 1 कोडॉन, देखो तो यहाँ मल्टीपल अमाइनो एसिड, यस और नो, जल्दी बताओ। मैंने जो सिचुएशन दिया है, एक कोडॉन मल्टीपल अमाइनो एसिड हो सकता है, यस और नो। एक कोडॉन मेरी बॉडी में जो है वही कोडॉन आपकी बॉडी में भी है, क्या मेरे और आपके बॉडी में दूसरे दूसरे अमाइनो एसिड बनेंगे? यस और नो, सोचो। नहीं ना, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, मल्टीपल कोडॉन एक अमाइनो एसिड, क्या ये हो सकता है? पॉसिबल? पॉसिबल है कि बहुत सारे कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड करें? सोच के बताओ, यस पे क्लिक करो अगर हाँ लगता है तो, नो पे करो अगर नहीं लगता है तो। चलो बढ़िया, तो सबको समझ आ गया ना? क्योंकि देखो हमारे पास कोडॉन बहुत सारे हैं लेकिन अमाइनो एसिड तो कम है ना, तो मल्टीपल कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन एक कोडॉन मल्टीपल अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यही आपका तीसरा पॉइंट है, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं पता है? डीजेनेरेसी। अगर आपसे कोई बोले कि कोडॉन आर डीजेनेरेट, कोडॉन्स आर डीजेनेरेट, उसका मतलब क्या होता है कि मल्टीपल कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, यही है डीजेनेरेसी का मतलब। कोडॉन्स क्या शो करते हैं? डीजेनेरेसी। समझ आ गया ना डीजेनेरेसी का मतलब क्या है? बहुत सारे कोडॉन अगर एक अमाइनो एसिड को कोड करे तो बोलते हैं कि कोडॉन डीजेनेरेसी शो कर रहा है, ठीक है। अब आ जाओ चौथे पॉइंट पे, पढ़ते कैसे हो कोडॉन को? मान लो ये mRNA है, इस पे सारा आपका इंफॉर्मेशन है, कैसे पढ़ते हो उसको? फुल स्टॉप लगाते हो, डैश लगाते हो, कमा लगाते हो, सेमीकोलन लगाते हो, ये सब लगाते हो क्या? यस और नो, ये सारी चीजें लगाते हो? नो ना, तो क्या होगा? कोई पंक्चुएशंस नहीं लगाते हो, यू डोंट यूज एनी पंक्चुएशंस। आप उसको लगातार पढ़ते जाओगे, यूजी सीजीटी सीजीटी सीजीयू, लगातार पढ़ते जाओगे, यू विल नॉट पुट पंक्चुएशन। जैसे रैपर्स लोग गाना गाते हैं ना, एकदम लगातार विदाउट टेकिंग ब्रेथ, वैसे ही बिल्कुल नो पंक्चुएशन, कंटिन्यूअस आप बोलते हो इसको। कोडॉन इज रेड इन mRNA in a contiguous fashion. contiguous का मतलब वही है, continuous, continuous fashion। कोई भी punctuations यूज नहीं करते हो, there are no punctuations, ठीक है। अब आ जाओ इधर, the code is nearly universal। क्या बोल रहा है अगला पॉइंट? कोड इज नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल का मतलब, उसका मतलब यही है कि किसी के भी बॉडी में हो, अगर AUG मेरी बॉडी में है, आपके बॉडी में है, एक छिपकली के बॉडी में है,
एक मेंढक के बॉडी में है, किसी की बॉडी में है, AUG क्या बनाएगा? मिथियोनिन बनाएगा। मतलब वो यूनिवर्सल है, हर जगह दुनिया के किसी कोने में अगर एक कोडॉन है तो वो हर जगह एक ही अमाइनो एसिड को बनाएगा। ये इसका मतलब होता है द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। अब मान लो कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ क्या लिखा है? नियरली। ठीक है, सो द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। कहीं भी लेके चले जाओ, उसको किसी भी कोने में लेके चले जाओ दुनिया के, वो कोडॉन वही अमाइनो एसिड बनाएगा। समझे? अब लास्ट पॉइंट देख लो, AUG के बारे में है कि AUG का 2 फंक्शन है। पहला, ये मिथियोनिन बनाता है। दूसरा, ये कैसा काम करता है? इनिशिएटर कोडोन का काम करते हैं। मतलब यहां से ही ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी। समझे? AUG का 2 फंक्शन है, एक तो वो मिथियोनिन बनाने में हेल्प करता है और दूसरा इनिशिएटर कोडॉन के जैसा काम करता है। यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट है, यू कैन हैप्पीली आस्क। ठीक है, डोंट हेजिटेट, यू कैन आस्क। अगर डाउट है तो यस पे क्लिक करो और पूछ लो जल्दी से, नहीं है तो प्लीज क्लिक ऑन नो सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। या सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक, म्यूटेशन। ठीक है, तो कहां होगा ये म्यूटेशन? आपका जो mRNA में जेनेटिक कोड है, आपका जो mRNA में जेनेटिक कोड है, हम उसको देखने वाले हैं कि अगर उसमें कुछ चेंजेस हो जाए तो कैसे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, इसको पढ़ाने के पहले मैं कुछ बेसिक्स बताती हूँ, तो मैं स्लाइड्स दिखाऊंगी। ठीक है, हम म्यूटेशन से समझते क्या है, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? कोई भी सडन चेंज हो जाना जेनेटिक कोड में। आपका जो जेनेटिक कोड है उसमें अगर मैंने कुछ चेंज कर दिया, सडन हो, स्लो हो, कुछ भी हो, अगर मैंने चेंज कर दिया, मान लो तो AUG को मैंने ACG कर दिया, ये क्या है? एक तरह का म्यूटेशन है, क्योंकि मेरा इंफॉर्मेशन AUG था। इंफॉर्मेशन क्या था? AUG। मैंने कर क्या दिया इसको? ACG। इंफॉर्मेशन मैंने चेंज किया या नहीं किया? तो आपकी बॉडी का जो DNA है, अगर एक भी नाइट्रोजनस बेस चेंज हो जाता है तो वो क्या है? म्यूटेशन है। तो आपका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, आपका जो जेनेटिक कोड है, चेंज इन द जेनेटिक कोड, चेंज इन द जेनेटिक कोड और सडन चेंज इन द जेनेटिक कोड इज म्यूटेशन। सबको समझ आया होगा? सडन चेंज in the genetic code is what? It is mutation. Got it? ठीक है, अब देखते हैं कि क्या म्यूटेशन के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। हो ही सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? सब कुछ के टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग, इसके भी टाइप्स पढ़ ही लेंगे। क्या क्या होते हैं बताओ? एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इसके नाम पे जाओ, नाम से बहुत कुछ होता है। लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है, देखो नाम से यहाँ बहुत कुछ होगा। बायोलॉजी में नाम में बहुत कुछ है। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट का मतलब क्या? इतना कुछ बड़ा सा या एकदम छोटा सा? एकदम छोटा ना। दूसरा वर्ड पढ़ो तो फ्रेम शिफ्ट। समझ आ रहा है कुछ? फ्रेम, पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया। कुछ यहां था पहले, कुछ यहां था, कुछ होने की वजह से, म्यूटेशन होने की वजह से पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया। शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, सब कुछ शिफ्ट हो गया। राइट? यस समीक्षा, वंडरफुल।
तो सबको समझ आ गया होगा कि पॉइंट क्या है और फ्रेम शिफ्ट क्या है। बायो के टर्म में समझ नहीं आया होगा, लेकिन होगा क्या वो समझ आ गया, राइट। पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाए तो फ्रेम शिफ्ट, एक जगह पे कुछ चेंज हो, एक जगह पे कुछ चेंज हो, वो क्या होगा, पॉइंट म्यूटेशन। तो देखो, अगर मैंने U को C कर दिया तो मैंने कितने नाइट्रोजनस बेस को चेंज किया, मैंने कितने नाइट्रोजनस बेस को चेंज किया, 1। अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड बेस को, अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड बेस को या नाइट्रोजनस बेस को चेंज कर दूं, तो वैसे म्यूटेशन को क्या बोलोगे, पॉइंट म्यूटेशन। सिंगल न्यूक्लियोटाइड को चेंज करने से जो म्यूटेशन होगा वो पॉइंट म्यूटेशन होगा, ठीक है। अब फ्रेम शिफ्ट क्या होगा वो हम सीखेंगे, मैं वो बताऊंगी। ये समझ आ गया है ना, होने वाला क्या है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट यू नो। अब हम डिटेल सीख सकते हैं। देखो, म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। पॉइंट म्यूटेशन क्या है, अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस इज चेंज्ड। कैसे चेंज कर सकते हो, या कोई नया डाल सकते हो या फिर कोई डिलीट कर सकते हो, डीएनए से या फिर आरएनए से। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड बेस को या तो आप ऐड कर दे रहे हो, एक ही कर रहे हो, या तो ऐड कर दे रहे हो या डिलीट कर दे रहे हो, ठीक है। या तो ऐड कर दे रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, डिलीट कर दे रहे हो। ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, रिमेम्बर। सिकल सेल एनीमिया कैसा डिजीज है बताओ, सिकल सेल एनीमिया कैसा डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। लेट मी चेक हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर। मैंने पढ़ाया था कुछ, सिकल सेल एनीमिया कैसा डिजीज है, किसी को भी याद है? एक ट्रिक भी बताया था मैंने, अलका सिक थी फिनाइल पीने से। विच काइंड ऑफ डिजीज इट इज, किसी को नहीं पता? बिंसी, दीक्षा, हाँ, यस वनश्री, गॉट इट, यस। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, राइट, यस, वंडरफुल, सो हैप्पी, यस श्रुतिका, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ये तो पता था हमें। अब ये एक पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। क्यों, देखो अभी डीएनए है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब इसका सीक्वेंस क्या है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जी ए जी। अब देखो, हम इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, ए के जगह पे क्या चेंज हो गया, देखो तो ध्यान से, ए की जगह पे डीएनए में क्या इंफॉर्मेशन चेंज हो गया, टी। ए की जगह पे क्या हो गया, टी। जी ए जी की जगह हो गया जी टी जी। समझ रहे हो? तो कितने न्यूक्लियोटाइड बेस को आपने चेंज किया, कितने को चेंज किया, एक को चेंज किया ना। तो अगर जी ए जी था तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या था, सी टी सी था। डीएनए था इसलिए ए के साथ टी है, अगर आरएनए होता तो यू लिख देते, है ना। तो डीएनए है इसलिए ए के साथ टी है, राइट। इसको ध्यान से देखो, जब ए को आपने चेंज कर दिया टी से, तो इसका डीएनए का बेस पेयरिंग क्या होगा, सी ए सी, टी के साथ ए हो गया, राइट। अब देखो, आरएनए जब बनेगा, आरएनए जब बनेगा तो एक ही आपका टेम्पलेट होता है। एक डीएनए से कितने आरएनए बनते हैं, एक डीएनए से कितने आरएनए बनते हैं, एक आरएनए बनता है ना, सबको पता है ये चीज ना।
सिखाया है मैंने ट्रांसक्रिप्शन, एक डीएनए से एक आरएनए। तो हमें पता है एक ही स्ट्रैंड, जो एक स्ट्रैंड है वो कैसा स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड कैसा करेगा बिहेव, कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा, और दूसरा स्ट्रैंड कैसा बिहेव करेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड के जैसा, राइट। तो यहाँ पे देख लो सीटीसी, सीटीसी कैसे काम कर रहा है, टेम्पलेट के जैसा है कि नहीं, सीटीसी टेम्पलेट के जैसा काम कर रहा है, तभी तो आरएनए जो बना, सी के लिए जी बना, टी के लिए ए बना और सी के लिए जी बना, राइट। तो सीटीसी आपका, सीटीसी जो है वो टेम्पलेट के जैसा काम किया, राइट। और उससे बना क्या आपका आरएनए, जीएजी। अब बताओ, मान लो ये एमआरएनए है, तो ये एमआरएनए क्या बनाता है, देखो अमाइनो एसिड। जीएजी एक कोडॉन हुआ ना, जीएजी एक कोडॉन हुआ, दिस इज अ कोडॉन। एमआरएनए पे एक कोडॉन है, इसके पास एक इंफॉर्मेशन है, कौन से अमाइनो एसिड के लिए, कौन से अमाइनो एसिड के लिए, ग्लूटामिक एसिड के लिए, राइट। जीएलयू, जीएलयू ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। अब ये नॉर्मल प्रोटीन बनाएगा, इसमें तो कोई म्यूटेशन नहीं था, नॉर्मल प्रोटीन बन जाएगा, आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा। अब इसमें देखो जब चेंज हो गया तो CAC टेम्पलेट है ना आपका, ये वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट है, क्या देगा बना के, C के लिए G हो जाएगा, A के लिए आरएनए है ना तो U हो जाएगा और C के लिए G हो जाएगा। तो देखो mRNA में क्या हो गया, mRNA में क्या चेंज हुआ, GAG से क्या बन गया, GUG, GAG से GUG, GAG क्या कोड कर रहा था, ग्लूटामिक एसिड, GUG क्या बनाता है, वैलिन, VAL का मतलब क्या, वैलिन, GLU का मतलब ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों अमाइनो एसिड है। तो प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से, राइट, अमाइनो एसिड चेंज तो प्रोटीन चेंज, राइट। तो क्या क्या हुआ बताओ, GAG से आपने GTG कर दिया उसको, आरएनए में क्या चेंज हुआ, GAG से GUG बन गया, GAG ग्लूटामिक एसिड बनाता था और GUG वैलिन बनाता था। तो इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या बनना स्टार्ट हो गया, वैलिन, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या बनना स्टार्ट हो गया, वैलिन, गॉट इट। तो यही आपका है सिकल सेल एनीमिया। तो जब ग्लूटामिक एसिड से वैलिन बनता है तो हीमोग्लोबिन का प्रोटीन अलग बनता है ना। हीमोग्लोबिन में कौन सा चेन होता है, बीटा ग्लोबिन चेन, पढ़ाया है मैंने ना, 2 अल्फा चेन थे, 2 बीटा चेन थे। तो वैलिन किसको इफेक्ट करेगा, बीटा ग्लोबिन चेन को, क्यों, क्योंकि बीटा ग्लोबिन चेन में ग्लूटामिक एसिड नहीं बन रहा, क्या बन रहा है, वैलिन बन रहा है, क्या बन रहा है, वैलिन। तो बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या बन गया, वैलिन। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का, समझे, यस। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, नहीं ना, यस। अब एक ऐसे ही एक एग्जाम्पल दिया है, एकदम बहुत इजी सा एग्जाम्पल है, देखो ऐसे बोला कि कोई कोडॉन है, हर कोडॉन ट्रिपलेट होता है ना, तो एक एग्जाम्पल ले लिया, राम हैज रेड कैप, तो सबके पास देख लो 3-3 है ना, एक एक कोडॉन ट्रिपलेट है,
अब उन्होंने क्या ट्राई किया करने का, देखो राम हैज, यहाँ पे क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया। क्या ऐड किया, बी। आर के पहले क्या ऐड कर दिया, बी। अब देखो जैसे ही बी ऐड हुआ यहाँ पे, राम एक कोडॉन हैज एक कोडॉन है, तीन तीन है ना। जैसे ही बी ऐड होगा तो बी के बाद दो और क्या आएंगे, बहुत ध्यान से समझो इसको। बी के बाद दो और क्या आएंगे, आर ई आएंगे। कुछ समझ आ रहा है, कौन अलग हो गया, डी अलग हो गया। अब डी के बाद दो और कौन आएंगे, सी ए आएंगे। कुछ समझ आ रहा है, और कौन अलग हो गया, पी। देखो तो राम और हैज में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही तुमने यहाँ पे बी ऐड कर दिया, बी आर ई एक कोडॉन बनेगा, डी सी ए एक कोडॉन बनेगा, पी बेचारा अलग हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है। अब देखो अगर तुम दो लेटर को इंसर्ट किए, पहले एक को इंसर्ट किया बी को, अब दो को इंसर्ट किया, कितने को, दो को इंसर्ट किया। अगर दो करोगे तो क्या होगा, बी आई ऑलरेडी दो है ना, तो तीसरा लेटर क्या हो जाएगा, आर, बी आई आर। अब आर के बाद क्या बच गया, ईडी, ईडी के बाद सी आ जाएगा साथ में। अब क्या बच गया, अकेला एपी। समझ आ रहा है कुछ। अब चलो ऐसा करते हैं कि तीन लेटर को डालते हैं। कितने लेटर को डालते हैं, तीन लेटर को डालते हैं। देखो राम हैज तीन को डाल दिया, बिग, बी आई जी बिग, तो तीन को डाल दिया। उसके बाद क्या है, बिग के बाद रेड है, फिर क्या है, कैप है। कुछ समझ आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो। आपको कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है कि पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया। क्या इसमें दिख रहा है, तीन वाले में, या एक और दो वाले में? जल्दी बताओ आंसर। अच्छा यस और नो में कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, क्या इसमें आपको दिख रहा है कि जहां पे आपने ऐड किया उसके पहले नो चेंजेस, बट उसके बाद सब में चेंजेस, यस और नो? केस 1 और केस 2 में देखो तो ऐसा हो रहा है। जहां आपने ऐड किया उसके पहले कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसके बाद कोडॉन चेंज हो गया है, यस और नो? किसी को नो लग रहा है क्या, सबको यस लग रहा है ना, अच्छी बात है। अब इसमें देखो जहां आपने ऐड किया, कितने, तीन, क्या इसके पहले कोई चेंज है, क्या इसके बाद कोई चेंज है? सोच के बताना, यस और नो में बोलना। क्या इसके पहले कोई चेंज है, क्या इसके बाद कोई चेंज है, यस और नो? नहीं ना, बस ये एक नया कोडॉन आ गया, लेकिन इसके पहले भी कुछ चेंज नहीं हुआ, इसके बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ। तो इससे क्या समझ आया, कौन ज्यादा खतरनाक है, कौन ज्यादा खतरनाक है? जब आप एक या दो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करो, जब आप एक या दो नाइट्रोजनस बेस को ऐड करो, उसके बाद का सारा कोडॉन खराब, उसके बाद का सारा कोडॉन खराब हो जाएगा ना। लेकिन अगर आप तीन नाइट्रोजनस बेस को ऐड करो तो क्या होता है, उसके पहले भी अच्छा, उसके बाद भी अच्छा। समझ रहे हो, है ना? तो जब तीन को आप डालते हो तो उसके पहले कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जब आप एक या दो को डालते हो तो उसके पहले कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद के सारे कोडॉन चेंज हो जाएंगे, सारा इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। क्या ये समझ आया सबको? यस, समझ आया सबको? अब बोलो, अब मैं सेम चीजें कर सकती हूँ डिलीट करके। अभी हमने ऐड किया ना, पहले एक ऐड किया,
फिर 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया। अब हम एक एक करके डिलीट करेंगे, एक डिलीट करेंगे, दूसरा डिलीट करेंगे, तीसरा डिलीट करेंगे। तो सोचो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा ना। मान लो मैंने क्या किया, यहां से आर को डिलीट कर दिया, गायब कर दिया आर को, तो अब क्या बनेगा बताओ? ईडीसी बनेगा ना, एपी बनेगा ना। मान लो सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, आर ई को हटा दिया। किसको हटा दिया? आर ई को हटा दिया। तो क्या बनेगा? डीसीए बनेगा ना। देखो डीसीए बन रहा है ना। मान लो थर्ड स्टेप में मैंने पूरे रेड को हटा दिया, पूरे रेड को हटा दिया, तो देखो क्या आएगा, राम हैज कैप। सेम चीजें हो रही है कि नहीं? या आप ऐड करो एक या दो, या आप डिलीट करो एक या दो, दोनों ही केस में क्या होता है, जहां पे आपने ऐड किया, जहां पे आपने डिलीट किया, उसके बाद के सारे कोडॉन खराब, चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 3 ऐड करते हो और 3 डिलीट करते हो तो क्या होता है उससे? बस वहां पे चेंजेस होंगे, उसके बाद का कोई चेंज नहीं और उसके पहले का कोई चेंज नहीं। समझ आ रहा होगा है कि नहीं? जिसको समझ पहले नहीं आया होगा अभी आ गया होगा अच्छे से, बिकॉज इट इज सेम, राइट? अब देखो, अब लैंग्वेज पढ़ लेते हैं थोड़ा इंग्लिश। इंसर्शन और डिलीशन। इंसर्शन मतलब ऐड करना, डिलीशन मतलब निकालना। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 और 2 बेसिस, एक या दो बेसिस, चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। समझ आ रहा है? पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है। कहां से? जहां पे आपने इंसर्ट किया है, जहां पे आपने इंसर्ट किया है या डिलीट किया है। अगर आप एक या दो इंसर्ट करते हो या डिलीट करते हो तो पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम वहां से उसके बाद सब चेंज हो जाता है। Such mutation are called as frame shift. इंसर्शन अगर आपने डाला, डिलीशन तो डिलीशन। तो ऐसे म्यूटेशन को क्या बोलोगे? ये जो तीनों कंडीशन है वो क्या है? फ्रेम शिफ्ट कंडीशन है। तो फ्रेम शिफ्ट हुआ कि नहीं? फ्रेम शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ? पूरा का पूरा चेंज हो गया ना। जहां पे आपने म्यूटेशन किया एक या दो बेस की वजह से, पूरा का पूरा म्यूटेशन हो गया, तो फ्रेम शिफ्ट बोलते हैं उसको, है कि नहीं? समझे? इसको क्या बोलोगे? इसको पॉइंट बोलोगे कि नहीं बोलोगे? क्या इसमें पूरा चेंज हुआ? पूरा चेंज नहीं हुआ, पूरा फ्रेम चेंज नहीं हुआ, राइट? तो फ्रेम शिफ्ट का मतलब, फ्रेम शिफ्ट आपको कैसे मिलता है? अगर आप एक या दो बेस को इंसर्ट कर दे या डिलीट कर दे, एक या दो, एक नाइट्रोजनस बेस या दो नाइट्रोजनस बेस को आप इंसर्ट कर दो या डिलीट कर दो, उस केस में पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है, एंड दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, राइट? गॉट इट? पॉइंट में क्या करते हैं हम? बस पॉइंट में चेंज कर देते हैं। एक यहां पे था तो इसको हमने चेंज कर दिया किसी और चीज से, तो वो हमने बोला पॉइंट म्यूटेशन है। सबको समझ आया? हैज एवरीवन अंडरस्टूड? यस, यस, ओके। इफ एवरीवन हैज अंडरस्टूड, do this question. I am launching a poll. Do this question fast. You can see the question on the screen, right? Answer it quick. In sickle cell anemia, the beta globin chain glutamate changes to, ग्लूटामिक एसिड किसमें चेंज होता है? जल्दी जल्दी, बहुत लोगों ने आंसर कर दिया है। अदर्स, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। कितनी बार बोला है ना इसको तो आज की क्लास में। ग्लूटामिक एसिड किसमें चेंज होता है?
Others, 94% have gone for the correct answer. Amazing. Yes. और लोग क्या कर रहे हो? वैभव, मानस, महबुनीशा, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो आई होप एक बच्चा नहीं, 2 बच्चों ने गलत आंसर नहीं, 3 बच्चों ने गलत आंसर करा है। कैसे? इतनी बार बोला ना कि ग्लूटामिक एसिड किसमें चेंज हो जाता है? वैलिन में, राइट? इसको देखो, एक ट्रिक है, हिंदी सबको आती है ना, देखो इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, बीटा ग्लोबिन चेन में ग्लूटामिक एसिड क्या बन जाता है? वैलिन, है ना? तो बेटा बेटा गोलू या गोलू, बेटा गोलू मतलब बीटा ग्लोबिन, ठीक है? बेटा गोलू, रिवॉल्वर में कितनी गोलियां हैं? या फिर ऐसे बोल दो, बेटा गोलू गोली गोली मार देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? इट इज हिंदी, राइट? बेटा गोलू गोली वोली मार देंगे, गोली वोली, लाइक नॉर्मली वी यूज दीज टर्म्स, राइट? गोली वोली, मैनिजारी, लाइक स्लैंग, इट्स द काइंड ऑफ स्लैंग, राइट? वी यूज। समझ आ रहा है ना जो मैं बोल रही हूँ? तो बीटा ग्लोबिन चेन में क्या होगा? गोली वोली, मतलब ग्लूटामिक एसिड किस में चेंज हो जाएगा? वैलिन में। ग्लूटामिक एसिड किस में चेंज हो जाएगा? वैलिन में। गॉट इट? Everyone got it? So that's your sickle cell anemia. All right? Any doubt up to here? You can ask. In tomorrow's class, we are going to learn structure of tRNA and उसका translation का process. ठीक है? उसके बाद हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सीखेंगे, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सीखेंगे। ठीक है? ये 3 टॉपिक्स रिमेनिंग है। Cool? So you can just recall all the things, whatever is discussed, right? And उसके बाद tomorrow we can start, right? चलो, thank you so much. Bye bye. Take care.